Kolkata rape and murder case. A big revelation has now been made by Abhaya's parents while speaking to the media yesterday. They have alleged that the Kolkata police, had tried to suppress the case by hurriedly cremating the body of their daughter. Victim's father also makes allegation that the Kolkata police tried to bribe them with money when they had in fact demanded to see the body. The parents, along with Abhaya's uncle, aunts and two cousin brothers, were in attendance of the Lights Out protest that took place at RG Kar in Kolkata and other different locations as well. Let's listen in first to what the father of the victim has to say about this entire matter. আমাদের মেয়েকে দেখতে আমরা যখন হসপিটালে আসি 12টা 10 মিনিটে আমার সেই মেয়ের মুখ দেখতে 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা ওই সেমিনার হলের বাইরে আমাদের বসিয়ে রাখা হয় এবং মেয়ের মা মানে অভয়ের মা পুলিশের হাতে পায়ে ধরতে শুরু করে। ভেতরে তখন লোকজন ঘোরাঘুরি করছে, আমাদের কিন্তু ভেতরে ঢুকতে হবে। এটা কি কারণে? এই প্রশ্নটা আমার উত্তর চাই। পোস্টমর্টম করতে হাসপাতালে দেরি করলো কেন? পোস্টমর্টম তো সাধারণত 4-5টার মধ্যে করা উচিত ছিল, কিন্তু দেখা গেল 6টার আগে পোস্টমর্টমটা হলো, 6টা থেকে শুরু হলো। আমি এফআইআর করলাম তারা থানাতে। কি হলো? আমি 6:30 থেকে 7টার মধ্যে এফআইআর করলাম। আমার এফআইআর এর রেজিস্টার হলো কখন? 11:45 পরে দেখতে পাচ্ছি ডাক্তার এখানে এত ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও এত কিছু জানার পরেও পুলিশ একটা আনন্যাচারাল ডেথ কেস করলো, ডায়েরি করলো। কি কারণে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কেউ এফআইআর করলো না, যেটা সবার আগে দরকার ছিল, করেনি। 12টা থেকে বিকাল 7টা পর্যন্ত আমরা এই RG Kar হসপিটালে পৌঁছেছিলাম, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কেউ আমাদের সঙ্গে কি কথাও বলেনি। আমরা দেহ দেখে দিতে চেয়েছিলাম, আমরা দেহটা দেখে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যে কোনো এত প্রেশার আমাদের তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়। আমরা টালা থানায় গেছিলাম, টালা থানার সামনে আমরা 1 ঘন্টার উপরে বসেছিলাম। 3 থেকে 400 পুলিশ আমাদের ঘিরে যেখানে একটা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে আমরা বাধ্য হয়ে বাড়িতে গিয়ে 400 থেকে 400 পুলিশ আমার বাড়ির সামনে ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এমন তো অবস্থা। Now to you viewers, let me bring the gist of what's been said by Abhaya's father in that particular bite that we just played out for you. First claim that he has made is the fact that despite the hospital administration and the police seeing the condition of the body and the circumstances under which the body was found, they declared it to be unnatural death, and there was no FIR lodged by either the police or the hospital administration. The second big claim that's been made by the father of the victim is the fact that when they wanted to see the body, when they went to the police station, when they had asked to see the body and had in fact even asked them why was the body being burnt in such hurry after the postmortem, after only one postmortem examination had been done, it was then that the Kolkata police had in fact offered them money which they refused right away. These are two big claims that's come out, that's been made. Allegations had been made by Abhaya's father. In fact, with that, let's cut across to our colleague Shayanta Bhattacharya, who's joining us on the broadcast to bring us more details. Shayanta, very good morning to you. पहले बात तो आप हमें ये बताइए कि ये जो दो बड़ी क्लेम्स आई है, हमें पहले से ही पता था कि पेरेंट्स डे 1 से क्लेम कर रहे हैं कि बॉडी बहुत ही जल्दबाजी में बर्न की गई थी, एक ही पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ था, इसके बावजूद कि जो बॉडी मिली थी, जिस कंडीशन में बॉडी मिली थी, उस कंडीशन में एटलीस्ट 2-3 ऑटोप्सी रिपोर्ट होने चाहिए थे, पर पुलिस ने ये मौका ही नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में बॉडी बर्न कर दी। और फिर आज ये भी क्लेम सामने आ रही है कि पुलिस ने पैसा रिश्वत देने की कोशिश की थी पेरेंट्स को ताकि ये केस जल्दबाजी में पूरा हश करके निकल जा सके, इसका पूरा मैटर ही बाहर ना आए। इस पूरे मामले में इसमें क्या क्या हमें और जानकारी मिल रही है? इसमें क्या सीबीआई को भी ये एंगल अभी प्रोब करने के लिए बोला जा रहा है? क्या क्या जानकारी आगे आ रही है हमारे सामने? देखिए, तिलोत्तमा के साथ जो दंडी काम हुआ है, इसको लेकर कलकत्ता के जो आम नागरिक है और अभी रास्ते में आके इसको लेके स्लोगन कर रहे हैं। कल रात को भी हम लोग देखा
लेकिन कल तिलोत्तमा के पिताजी जो आरोप दिया पुलिस के ऊपर, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि पुलिस के ऊपर आरोप था, लेकिन ये जो मुंह बंद करने के लिए जो रुपए देने का आरोप दिया है तिलोत्तमा का पिताजी ने, ये लेकिन सीबीआई खुद के इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट इंक्लूड करने वाला है, जो सीबीआई सोर्स से हम लोग को मिल रहा है, जिसका नाम आया है अभिषेक गुप्ता, जो डीसी नॉर्थ है, जिसका नाम बार बार तिलोत्तमा का पिताजी ले रहा था। ये बंदा, ये डीसी उस दिन कहा था, उस दिन उसका रोल क्या था, वो सचमुच पिताजी को ऐसे कहा था क्या जस्ट आरोप के लिए ऐसे कह रहा है उसका पिताजी? ये सब सीबीआई खुद की इन्वेस्टिगेशन में लेके आने वाला है। और एक चीज होने वाला है, कल पिताजी और उनका जो मदर तिलोत्तमा का, ये दोनों जो आरोप दिए लगाया पुलिस के ऊपर, सीबीआई उन लोगों के साथ अलग से बात करेगी, क्योंकि ये जो आरोप है ये कुछ नेचुरल, कोई नॉर्मल आरोप नहीं है, कोई पुलिस के डीसी के ऊपर आरोप है। आपको पता है, क्योंकि कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर के ऊपर ऐसा भी आरोप है, जो जूनियर जो डॉक्टर है उन लोग भी आरोप लगाया था कोलकाता पुलिस कमिश्नर के ऊपर, उसको भी लेके सीबीआई अपने तरह से जांच कर रहा है। लेकिन डीसी के ऊपर ये जांच, ये रुपए दे के मुंह बंद करने का जांच, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पार्ट में। अभी आप देखना होगा सीबीआई कैसे तरह से ये जांच करेगा, पुलिस को आप लोग इंट्रोगेशन करेगा, जो डीसी को वो इंट्रोगेशन करेगा, या डीसी से कोई रिपोर्ट मांगेगा, ये देखने वाला है अभी कुछ दिनों में। जी बिल्कुल शांत, हमारे साथ बने रहिए। बिफोर दैट लेट मी जस्ट ब्रिंग टू यू द फैक्ट दैट द कोलकाता पुलिस सिंस डे वन has come under strong criticism from the opposition as well as the citizens for its handling of this sensitive case. There have been several lapses that we have seen, be it with how they've treated the accused Sanjay Roy, who's already under their custody, who was already under their custody and now currently is in the CBI custody. And there's plenty that has been said against the Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal. In fact, to the extent that he was given a spinal cord by junior doctors at his very own police station, where he was forced to accept that what happened on 14th of August as well was a lapse on the part of the police. In fact, शांतो, मैं आपके पास ये सवाल भी करूंगी कि अभी तक जितनी भी जांच हुई है सीबीआई के द्वारा, उसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या लैप्सेस बाहर आई है? क्या सीबीआई ने कुछ ऐसा जांच किया है, कुछ पूछताछ किया है पुलिस के कमिश्नर हो या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स, डीसी जैसे आप बता रहे थे, इनके साथ कोई पूछताछ की कोई राउंड्स हुई है सीबीआई की अभी तक? देखिए, सीबीआई के दो तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक करप्शन इशू अभी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पार्ट में इंक्लूड हुआ है, उसको लेके जो फॉर्मर जो प्रिंसिपल था उसको अरेस्ट किया है, उनके साथ उनका 4 एसोसिएट भी अरेस्ट हुआ है, ये अलग से हो रहा है। और एक हो रहा है जो तिलोत्तमा को ब्रूटली रेप एंड मर्डर किया है, उसके अलग तरीके से जांच हो रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अभी तक उसमें जो पीओ साइड है, पीओ में क्या क्या हुआ था, हॉस्टल में क्या हुआ था, उस दिन ये भी पता चल रहा है 8 अगस्त को चल रहा था हॉस्टल में, उसके साथ इसका कोई लिंक है क्या नहीं, ये अभी तक जांच कर रहा है। पुलिस को ये जांच में इंक्लूड करेगा, सीबीआई से सोर्स से ये पता चल रहा है इंक्लूड करेगा। लेकिन पहले पीओ का सिचुएशन क्या था, हॉस्टल का सिचुएशन क्या था, और जो सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो डॉक्टर है, उन लोग का रोल क्या था, ये सब जांच करने के बाद पुलिस को इंक्लूड करेगा। लेकिन कल जो पिताजी ने कहा था, इस बार तो ये डीसी को और सीपी का आपको बताया, सीपी का रोल भी सस्पिशियस रहा, क्योंकि बार बार ये जो जूनियर डॉक्टर लोग, ये विनीत गोयल कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के रोल से बहुत खफा है, इसलिए ये लोग भी चाह रहे हैं विनीत गोयल को भी इंट्रोगेशन करना चाहिए। सीबीआई सोर्स से पता चल रहा है इसको भी ये इंट्रोगेशन पार्ट पूछताछ करना होगा। लेकिन अभी पीओ में क्या हुआ है, हॉस्टल में क्या सिचुएशन था, ये सब जांच करने के बाद पुलिस को इंक्लूड करेगा, और जांच जो चल रहा है, जो पूछताछ में भी पुलिस को इंक्लूड करके पुलिस को बुलाया जाएगा सीबीआई ऑफिस में, तब
पता चलेगा सीबीआई पुलिस का क्या रोल था। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जी। जब ये कांड हुआ था तब पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होने से पहले जो पुलिस से आ गया था ये सुसाइड अननेचुरल डेथ, जी इसको बिल्कुल। भी लेके अलग से सीबीआई जांच कर रहा है, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई जो पीओ साइड है उसमें नहीं गया, लेकिन हाँ। बोल दिया कि ये अननेचुरल डेथ है। ये भी बहुत सस्पिशियस है, इसलिए ये अलग डेथ से बाय सुसाइड डिक्लेयर CBI की किया तरफ गया से- था इनिशियली। या जी बिल्कुल या शायद। तो हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। Well, those are the updates that we bring to you. In fact, the visuals that you see is of the unique movements that continue to take place in Kolkata in demand for justice for Abhaya. This particular visuals are of the lights out protest that took place across the city.